Quality in education is what makes learning a pleasure and a joy. Yes, that's what our motive, right? To make our education journey more happening and enjoyable and amazing and understandable, more basic. Okay? Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushi Kucheria, and of course we are on chapter number 4th now, and we have covered our SP syllabus of class 11th till chapter number 4th. Now onwards I'm going to cover chapter number 4, 5th, 6th, and I'm going to cover the whole syllabus of our SP syllabus. Now this chapter is documents related to formation of the company. Let's begin. Now in this chapter, documents related to formation of the company. What do you mean by the topic documents related to formation of the company? Whenever you want to form a company, you need some important documents which you need to maintain or prepare. Okay. Now in this chapter, like in previous chapter, we saw the steps for formation of the company. Now we are going to see that what are the important documents that we are going to we need to form a company. So there are just 3 things and 3 documents that we need, and 3 things that we are going to study in this chapter. Don't get confused. We are just going to study about 3 things, that is memorandum of association, article of association, and prospectus. All of these 3 names are very known to us. We are not very against it. We know all these 3 terms. We have used these terms in our previous chapters also. Now we are going to study each and every documents deeply. And yes, only 3 documents and 3 topics that we are going to learn in this chapter. Make it really simple. Memorandum of association, article of association, and prospectus. अभी एक काम करते हैं, 2 लैंग्वेजेस में समझते हैं. इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हम पहले इन शॉर्ट समझते हैं और उसके बाद ब्रीफ में जानेंगे. ठीक है. इन शॉर्ट, जस्ट टू क्लैरिफाई व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सीरीज. फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये डॉक्यूमेंट है क्या, इसके अंदर होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. आपकी कंपनी का उद्देश्य, मोटिव, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या है, ये सारे इस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा. ठीक है. नाउ इट इज़ क्लियर दैट वाई दिस डॉक्यूमेंट इज नीडेड. सेकेंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों चाहिए? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मेन्स और ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद आर्टिकल में लिखा होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी कंपनी के हैं क्या. इसके बाद अगर प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स अबाउट द कंपनी एंड the investors to buy the securities offered by the company. ये सब होने के बाद, कंपनी शुरू होने के बाद प्रोस्पेक्टिव्स प्रिपेयर होता है, जिसके अंदर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड, एक डॉक्यूमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, जिसको देखकर आपके शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में अट्रैक्ट होंगे. दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, द मेन मोटिव इज द फॉलोइंग. ठीक है. अब हम ब्रीफ में एक एक को जानेंगे. जानने के पहले एक बार और एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. At the time of incorporation of the company, following documents have to be submitted to the registrar of companies. Memorandum of association and article of association. ये 2 चीज़ें कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है, इसलिए हमको प्रिपेयर करना पड़ता है. A public company, if it is collecting capital from the public, must issue prospectus to invite the public to buy its shares and debentures etc. एक छोटा सा एक prospectus उनको बनाना पड़ता है, जिसके अंदर उनके कंपनी की कैपिटल की डिटेल्स वगैरह लिखी होगी, जिसके वजह से आपके शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स आपके कंपनी को अट्रैक्ट करेंगे. लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स इन दिस चैप्टर. ओके. Let us understand memorandum of association in brief in this video.
In Memorandum of Association, we are going to learn about 4 things. That is, we are going to learn the meaning, definition, features and clauses of Memorandum of Association. In this way, we are going to complete this Memorandum of Association video. Let us start by knowing the meaning of Memorandum of Association. The meaning itself says that it is the primary document of the company as it states the purpose for which the company is formed. Yes, it states the purpose, पर्पस में ऑब्जेक्टिव्स, मेन्स और एम्स, सारी जो कंपनी के जो मेन उद्देश्य है वो सारे इस प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट इज MOA एंड दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है. इट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अ कंपनी कैन अंडरटेक. आपकी कंपनी क्या हद तक एक्टिविटीज़ कौन सी कर सकती है, कंपनी किस चीज़ की है, ये सारी चीज़ें MOA में मेंशन्ड होती है. Let's read the formal definition of the company of the MOA. Now section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013 defines memorandum as memorandum of association of the company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company's law or of this act. The above definition refers memorandum of association as a legal document. It is what? A legal document that must be prepared by every company as per the provisions of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 में ये लिखा है कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपकी कंपनी का पहले इनकॉर्पोरेशन के स्टेप के वक्त ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए. मीनिंग एंड डेफिनेशन जानने के बाद अब हम सक्षम है उसके फीचर्स जानने के लिए. अब हमें ये जानना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, वो होता क्यों है. ओके, नाउ सबसे पहला फीचर है इट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. नो, कम ऑन, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग. वी ऑलरेडी नो दैट it states the aims and objectives of the company. What is second? It describes and regulates the relationship between the company and outsiders. Very important point. आपकी कंपनी में जो बाहर वालों के साथ और कंपनी के अंदर वाले एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसको भी एक तरह से डिस्क्राइब करता है. कैसे? द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है इसके अंदर. हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम वेदर अ कंपनी इज़ परमिटेड टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज़ और नॉट. आपके MOA में ये भी लिखा होगा कि क्या आपकी कंपनी आगे जाके शेयर होल्डर्स को इन्वाइट कर सकती है भी कि नहीं. तो ये सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो सारी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है. Every company needs to prepare its MOA at the time of its incorporation and submit it along with the application of incorporation to ROC, Registrar of Companies. मैंने शुरुआत से ये बात बार बार रिपीट की है कि इनकॉर्पोरेशन के स्टेप के वक्त ही आपको, अगर बहुत सारे लोगों ने अगर ये चैप्टर ही देखना ऐसे ही शुरू किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले 3rd चैप्टर देखिए, उसके बाद ये चैप्टर देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इनकॉर्पोरेशन स्टेप के वक्त ही आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन जाना चाहिए और ROC के बाद सबमिट भी हो जाना चाहिए. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स एंड नीड टू बी साइंड बाय. ये प्रमोटर्स से प्रिपेयर की जाती है और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग को साइन करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 इंसान को इसके ऊपर साइन करना पड़ता है. ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ अग्रीड टू सब्सक्राइब. As per the Companies Act 2013, each subscriber must take at least 1 share. This will not be required for a company with guarantee without share capital. तो इस वाले स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले वो कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है. दूसरा, कंपनी के अंदर और बाहर वाले लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है. तीसरा, इनकॉर्पोरेशन स्टेप के वक्त ही ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए और ROC में सबमिट हो जाना चाहिए. चौथा,
अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग इसको साइन करने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और 1% कंपनी है तो मिनिमम 1। यहाँ तक याद करने के बाद अब आगे के स्लाइड में शिफ्ट हुई है। मेक श्योर अगर आपको पॉज करना है, पॉज करके एक बार रिविजन कीजिए ताकि आप वीडियो देखते देखते ही आप इसको याद कर ले और आपको फिर से बैठने की ज़रूरत ना पड़े। आगे के फीचर्स देखते हैं। 5th वाला फीचर ये कहता है कि इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस। अभी ये जो क्लॉजेस वाला सेक्शन है इसका एक दूसरा वीडियो बनने वाला है। इसका जो अगला पार्ट होगा ये सारे क्लॉज को ब्रीफली डिफाइन करने वाला है, तो हम इसको सिर्फ शॉर्टली एक बार देख लेंगे। इसके बाद अभी इसके अंदर ये फॉलोइंग क्लॉजेस है, ठीक है। क्लॉजेस मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी एक छोटे छोटे हिस्से होते हैं। नेम क्लॉज होता है, एड्रेस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल एक्सेट्रा। एज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइन करता है, इसीलिए इट इज़ नॉट सो ईजी टू अल्टर द क्लॉजेस बार बार, क्योंकि आपके पूरे कंपनी का हिस्सा, नेचर, कैरेक्टर, वो कैसा है, उसका स्वभाव, सारी उन बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, तो उसको आप बहुत जल्दी जल्दी बदल नहीं सकते, उसको काट कटाई नहीं कर सकते। अगर मैंने नाम गलती से गलत लिख दिया हो तो आप बार बार उसको कट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अलर्ट रह के उस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स बहुत सटीक तरीके से भरनी होगी। द आर्ट हैज़ लेड डाउन specific rules and provisions to be followed to alter each clause। हर एक क्लॉज को अल्टर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। वो इतना आसान काम नहीं है, तो आप एक ही बार सब डिसाइड कीजिए और उसके बाद MOA बनाइए। इट cannot contain anything contrary to the provision of Companies Act 2013। आपके कंपनीज एक्ट, आपके जो लॉ में, आपके इंडियन लॉ में जो लिखा है उसके विपरीत अगर उसने कुछ भी डिफाइन किया हो तो वो सहन नहीं कर सकता, वो नहीं होगा। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा है उसके विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए। एनी एक्ट डज बाय द कंपनी विच गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, आपके सारे लॉज के ऊपर अगर कोई भी काम आप करते हैं इलीगल तो वो माना जाता है इनवैलिड और उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस को भी हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं। कोई भी काम अगर इनवैलिड आपने कर दिया तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। लास्ट 2 फीचर्स क्या है, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट and anyone who wants to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the contents of the company's memorandum of association। अगर कोई नई कंपनी को, पब्लिक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कंपनी के पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। तो इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनीवन entering into your company can obviously read and get knowledge, ठीक है। Companies Act 2013 has prescribed the format in the table of form of table ABCDE for preparing the memorandum for different types of companies। अलग टाइप ऑफ कंपनी के लिए अलग टाइप ऑफ मेमोरेंडम प्रिपेयर करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। आई एम श्योर दैट मैंने ये पार्ट को मेरी तरफ से बहुत अच्छी से कवर किया है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, ऑब्वियसली कमेंट डाउन्स खुला है, यू कैन जस्ट पुट डाउट्स एंड आई हैव मेड doubt videos throughout my YouTube career and I will make it in future also। You will get your doubt videos within 2 days you have posted the comments, okay। And in case of emergency maybe I'll take a little more time, but I will surely do the video on it। So make sure, please appreciate our efforts and like, share and subscribe to my YouTube channel। Share it with your 11th and 12th class friends and spread my YouTube channel so that our family can become more wider and we can be more wider in spreading knowledge। Thank you।